बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। तिजारत हवाले सरबा मूंग खबर को तिजारत यो ढेर मुहिम मौजूदा और अफगानिस्तान दा पारा हम ढेर मुहिम दा वले अफगानिस्तान के दे वक्त के सर्वाइव कोली शी तगे सख वक्त नती दी शी नो आगा दई द पारा पाकिस्तान ढेर ज़्यादा मुहिम दे द मशरिक टीवी नुमाइंदा और सीनियर सहाफ़ी वली खान शिनवारी से दे वक्त के मुंग सरा टेलीफोन मौजूद दे लंडी कोतल कवर कई दगा पाक अफगान बॉर्डर हर स दागुता पतरा तेर लस शल कालो के दर नस शिवी दी वली शिनवारी पखपल उस्तर गुली दिली दी। टेरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक वली साहब दारा तो हुआ है चिसिंगमा जिक्र होकर दगा तेर शल काला अमेरिका राला अमेरिका लाड़ा तरोसा पोरे कम सूरत हाल दे सगणे दगा चे कम ट्रांजिट ट्रेड दे या ट्रेड कम रवान दे ज्यादा शेवे दे का कम शेवे दे। बिल्कुल इरफान संगस्तासो खबर ओकरा द यो मुल्क प मशियत के यो बुनियादी किरदार लरी और तोरखम पूरी हवाले सरा खबर ओकरे शीनो पाक अफगान तोरखम पूला دا د ملک ټولنا یو مصروف ترین او اهم ترین بارډر ګڼل شي چې په دغه باندې ټول نه زیات تجارت کیږي خو اوس چې کله نو هم په افغانستان باندې د افغان طالبانو قبضه کړې ده تر هغې نه بعد په تورخم پوله باندې په ایکسپورټ کې کافی حد پورې کمای راغلی خو ولې بل خوا چې کوم تاجران دي ترانسپورټران دي یا کوم کسټم کلیر ایجنټان دي هغه امپورټ په حق باندې وایي چې امپورټ کافی حد زیات شوی دی او په هغې باندې ډېره خوشحالۍ اظهار هم کوي او هغوی دا وایي چې مخکې به په تورخم پوله باندې روزانه په بنیاد باندې د سلو نه تر 1900 پورې به ګاډو دغه امپورټ به کېدو خو اوس هغه ریشو چې کومه ده د 800 پورې ګاډو پورې دغه رسېدلې امپورټ کې کافی حد پورې اضافه شوې ده. ولی صاحب لږ دا لږ کلیر کړئ تاسو شروع کیو چې کمې راغلې تجارت کې بیا ګاډي زیات تیری کې لګای دا څنګه طریقې کار دی ګاډي که زیات تیری تجارت څنګه کم شو؟ فهیم صاحب تاسو زما خبر وکړه د امپورټ حواله سره چې په امپورټ کې کافی حد پورې زیاتوالی راغلی خو چې کوم ایکسپورټ کیږي د پاکستان د افغانستان ته په هغه کې کمی راغلی ځکه چې مطلب که موږ د افغانستان نه سره غواړو هغه زیات شوي دي خو که څه موږ لیږو هغه کم شوي دي او بالکل چې کومه څیزونه د افغانستان نه پاکستان ته راځي نو هغه کافی حد پورې په هغه کې زیاته راغلی چې کوم سامانونه د پاکستان نه افغانستان ته ځي نو په هغه کې کافی حد پورې کمی راغلی او بنیادي وجه همدغه وښیي چې کوم تاجران دي په پاکستان کې هغه اوسه پورې دومره اعتمادي نه دي چې هغه په زیاتره مقدار سره دغه سامانونه افغانستان ته ولګي او هغوی دا وایي چې څو پورې په افغانستان کې استحکام نه راغلی او حکومت په صحیح توګه باندې قایم کړی شوی نه یو چې کوم افغان کسټم هاوس دی په هغې کې دوی ته مکمل په توګه باندې یقین دهاني نه ورکړي او هغه هر څه کلیئر شوي نه وي نو تر هغې پورې تاجران اوس دا نه خوښوي چې زیاتره د پاکستان نه افغانستان ته مالونه ولګي او چې کوم د افغان تاجران دي او کوم څیزونه په کې سبزي ده په کې فروټس دي چې افغانستان نه پاکستان طرف ته راځي نو هغه کې اضافه شوې ده ځکه چې هغوی دا وایي چې کوم رکاوټونه به د افغان پولیسو لخوا د افغان په تورخم کې به جوړ کړی شوي نو هغه رکاوټونه اوس افغان طالبانو کافي حده پورې ختم کړي دي چې کوم اضافي ټیکس به اخیستل کېده نو هغه ټیکسونه هم اوس افغان طالبان نه اخلي نو د دې وجې نه اوس د په امپورټ کې کافي حده پورې چې کوم دی ولی صاحب یو ګیله به دام وه چې د پولې نه هغه غاړه به زمونږ کنټینرې هلته انښتې وې خالي کنټینرې به وې او د هغوی نه به پیسو ډیمانډ کېده اوس صورتحال د هغې څه دی؟ بالکل فهیم څنګه تاسو یو بنیادي خبره وکړه په دې هکله باندې ترانسپورټران وایي چې کوم اضافي ټیکس به اخیستل کېده د افغانو پولیسو لخوا هغه اوس اضافي ټیکس یا کوم رشوت به اخیسته هغه افغان طالبانو لخوا په مکمله توګه باندې ختم کړی شوی دی او دا مکمل اعلان شوی دی چې کومو ترانسپورټرانو نه بېځایه ټیکس اخیستل کېږي نو هغوی باقاعده شکایت درج کولی شي نو په افغان کسټم هاوس کې د طالبان دوی له یو چیټ ورکوي او هغه چیټ چې کوم د دوی سامان رسوي نو تر هغې ځای پورې دونه هېڅوک هم بېځایه هغه ټیکس نه اخلي هغه چې کوم اضافي پیسې به تر اخیستل کېدی نو هغه اوس نه تر اخیستل کېږي نو په دې باندې چې کوم ترانسپورټران دي کوم تاجران دي هغوی ډېر زیات خوشحالۍ اظهار کړی او هغوی دا وایي چې
چې اسانتیاوي په افغان طالبانو د افغان په تورخم کې پیدا کړي، نو دغه چې هغوی د پاکستان حکومت ته هم دغه غوښتنه کوي چې کوم رکاوټونه په پاکستان په تورخم کې دي چې هغه کسټم چارواکو خوا دي چې هغه کلیرنس یې په توګه باندې نه کېږي، یا د نور چې کوم سهولیات دي د ویباک آنلاین سیستم کې چې هغوی ته نت سهولت پکار وي یا بجلی سهولت، نو دوی هم دا غوښتنه کوي چې پکار دي چې دغه تورخم کې هم د تاجرانو ته بنیادی سہولیات ورکړل شي چې نه څنګه چې امپورټ کې اضافه شوی دغه څه په ایکسپورټ کې هم کافي اضافه وشي. ډېره مهرباني ولی شینواری مونږ سره او معلومات شریک کول چې دغه صورتحال کله بچې د التطوان حکومت موجودو تیر حکومت موجودو حکومت خو نن هم اعلان وشو نه حکومت راغی نو تیر حکومتي دور کې دننه به روزانه سل نه والا تر یو نیم سل پورې ګاډي راتل، اوس هغه ګاډي 500 ته رسېدلي دي، مطلب څلور یا 15 چنده پای کې اضافه وشوه، ولې چې هلته کې چې کوم رشوت به د هغوی نه ډیمانډ کېده دا خبرونه مونږ په خپله هم رپورټ کړي دي چې اخوا کم اهلکاران به بخښنه غواړم د افغان پولیس حوالې سره هغوی به پیسې اخیستې، رشوت به اخیسته، او اوس هلته کې هغه رشوت سلسله بالکل کمه شوې ده یا ختمه شوې ده. دا د ټرانسپورټرز وینا ده چې کوم د هغې ځای نه سامان راځي د هغې حوالې سره هم کافي حده پورې کنټرول راغلی دی. دغه چې کوم ټرانسپورټرز دي دغه سرمایه کاران دي د هغوی صورتحال څه دی، د لپاره به مونږ رابطه کوو د افغانستان او د پاکستان جوائنٹ چیمبر د هغوی کې هم هغوی کافی کار کړی دی او کافی اہم صنعتکار هم دی، ضیاء الحق سردی صاحب هغوی موجود دی. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پہلا بنیادی سوال جو کہ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ درآمدات ہمارے ملک میں بڑھی ہیں لیکن برآمدات کم ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس میں ایک بیلنس جو ہے وہ نہیں آ سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم صاحب سب سے پہلے تو میں مشرق ٹی وی کا نہایت مشکور ہوں کہ اتنے اہم ایشو کے اوپر آپ ہمیں موقع بھی دیتے ہیں، بلکہ ہر مرتبہ آپ ہماری اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ 2002 سے لے کر 2012 تک جو ہماری پاک افغان تجارت تھی اس کا حجم تقریباً 33 ارب ڈالر تھا. اس کے بعد پھر مسلسل اس میں کمی آتی رہی اور 2019 بلکہ 2020 تک جو صورتحال ہے وہ 1.37 ارب ڈالر تک رہ گئی ہے، بلکہ اب اس سے بھی کم ہو گئی ہے، کروڑوں میں آ گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے، جیسے کہ آپ نے خود بتا دیا ہے کہ افغانستان کی جو نئی حکومت طالبان کی آئی ہے تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے شروع میں تو بڑے اچھے اقدامات بھی کیے. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ جو ان کے محصول تھے اس میں نمایاں کمی کی، اور پھر ان کا ایک ڈاکومنٹ تھا علم خبر، وہ انہوں نے ختم کر دی، اور لیکن وہ علم خبر کل پھر دوبارہ انہوں نے لاگو کر دی، لیکن اس میں بھی کافی حد تک انہوں نے اس میں نمایاں کمی کی، جو خرچے تھے ان کو کم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ ہمارا ان کے ساتھ ایک رولا ہوتا تھا کہ ایک ان کا دوسرا ٹیکس ہے خاکی پلی. خاکی پلی چونکہ بہت زیادہ تھی تو خاکی پلی میں بھی انہوں نے تقریباً 50% رعایت دے دی. تو یہ بڑے اچھے اقدام تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تجارت میں بڑے اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بینکنگ سسٹم ابھی تک فعال نہیں ہو سکا. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں کہ بھئی اس وقت کیا صورتحال ہے، تو وہاں ابھی صحیح طریقے سے حکومت قائم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کاروباری جو تاجر ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ابھی تقریباً 82% جو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اس میں کمی نمایاں ہوئی ہے. اب صرف اور صرف 82% ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے. یہ کم ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صرف جو ایکسپورٹ ہے وہ سیمنٹ کے ٹرک جو ہیں، سیمنٹ ہماری بہت زیادہ جا رہی ہے، 50, 60, 70, 80 یہ ٹرک ڈیلی جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے خوراک آباد تھا جس میں جوسز تھے، دودھ تھے، بالائی تھی، اپنا بسکٹ تھے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء، پھر باقی جو چیزیں تھیں رنگ روغن وہ بھی تھے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ جو کہ ہمارا بڑا اہم ایشو بھی ہے، اس میں ادھر سے تو ٹرک جا رہے تھے، لیکن چونکہ اب تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ یہاں کی جو صورتحال ہے ابھی تک واضح نہیں ہو رہی. لیکن آج چونکہ ان کی کابینہ بھی بن گئی ہے، عبوری کابینہ بن گئی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا.
तो वो पीछे से जो हमारे जो अफगानी सौदागर हैं उन्होंने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का काम करते थे, फिलहाल उन्होंने अपने जो चाइना से जो उनके माल आते हैं या दूसरे ममालिक से आती हैं वो फिलहाल उन्होंने रोके हुए हैं। इस वक्त ही मैं अभी थोड़ी देर पहले कराची पोर्ट की भी मैं रिपोर्ट ली है, हमारी भी पाइपलाइन में काफ़ी कंटेनर आने थे तो वो भी अभी उन्होंने वहाँ पे रोके हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे हालात अच्छे हो जाएंगे। सदी साहब, एक सवाल जो अमूमी तौर पे आप ही ने ये रेज उठाया, हर बार आप ये बात करते थे कि हमारी हुकूमत होश के नाखून ले वरना हमारी तिजारत बंदर अब्बास मुंतकिल हो जाएगी, और काफी हद तक आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त भी थे। आपने ये सवाल उठाया, अभी सूरत हाल क्या है? तोरखम पे, चमन पे तो कमी आई है, तो क्या बंदर अब्बास पे भी कमी आई है? जरूर हतमन। देखिए, हमने तो पहले जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो मुआहदा हुआ था 1965 का 45 साल तक बड़ा खुश हसलूबी से चलता था, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ अखबारों में कॉलम भी होते हैं। आप भी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप भी हमारी उसमें हेल्प करते रहते हैं, हमारी प्रेस रिलीज भी लगती रहती हैं। तो हमने बार बार, हमारी चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारा जो पाक अफगान जॉइंट चैम्बर है, उन्होंने अपनी सतह पे भी ये आवाज़ बुलंद की कि यार इसमें खुदा इसमें कोई तरमीम करें। और दूसरे, जैसे कि आपको पता है, खैर अब तो नई हुकूमत आ गई है, तो वो हमारा 10 साल हो गए उस मुआहदे को, उसमें इतने खतोखाल थे और इतनी उसमें मुश्किलात थी कि वो हमारी 70% जो तजारत थी चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते मुंतकिल हो गए थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, आपने भी ये सवाल भी किया है कि एम्प्टी कंटेनर, वो हमारा बड़ा एक काफी अर्से से 2-3 सालों से ये मसला चल रहा है। हालांकि पहले ये नहीं था, ऐसे नहीं था। हमारे कंटेनर जो जाते हैं जो यहाँ के, आप जैसे कि आपको पता है कि वो कंटेनर जो होते हैं वो मुख्तलिफ शिपिंग कंपनी के होती हैं। वो वहाँ से कराची से माल लोड होता है, फिर पेशावर आता है, फिर तोरखम जाता है, जलालाबाद, फिर उसके आगे काबुल जाता है, फिर इनके मासूल होते हैं। फिर उसके बाद वो जो एम्प्टी कंटेनर हैं जब वापस आती हैं, क्योंकि उन्होंने कराची वापस आना होता है और उनका एक ट्रांजिट टाइम होता है कि जिस वक्त इनको यहाँ से ये माल उठाते हैं तो उस उनके पीछे जो इनकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो BL इशू करते हैं, उसके पीछे बाकायदा लिखा होता है कि जिस वक्त ये कंटेनर पहुंचेगा कराची पोर्ट पे तो ये 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपने एम्प्टी कंटेनर जो है ये शिपिंग लाइन को वापस करना है। अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर जितना भी टाइम गुजरेगा तो वो $10 से लेकर $160 पर डे उस पे डिटेंशन चार्ज आएगा। आप हिसाब लगा लें कि जो कंटेनर जाती हैं और फिर जब वापस आती हैं तो उसमें एक महीना, 40 दिन, 35 दिन लग जाती हैं। और फिर सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि फल मैदान जो कि वहाँ उस तरफ अपना जलालाबाद के करीब जो है वहाँ हम काफी दफा गए भी हैं। हमने काफी दफा मुतालबा भी किया है कि भाई खुदा इनको छोड़ें, इन ट्रकों को। लेकिन जिस वक्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो वो हर ट्रक से वो 50,000 60,000 तकरीबन 1 लाख रुपए तक वो भुत्ता लेते थे और उन ट्रकों को छोड़ते थे। और वो अपना ये जब उनसे हम जब बात करते थे तो ये कहते हैं कि इस वक्त हमारा सीजन है और हमारे फ्रेश फ्रूट हैं और पेरिशेबल आइटम है, पहले हम इनको छोड़ेंगे और उसके बाद ये तो एम्प्टी ट्रक है, इनमें तो कोई चीज नहीं है, कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। हालांकि ये नुकसान उनका अपना है कि हर एक कंटेनर पे आप डिटेंशन चार्ज जो है, अब इनको ये नहीं पता लगता कि हर कंटेनर के ऊपर लाखों रुपए का डिटेंशन चार्ज लग रहा है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि ये तालिबान की हुकूमत आई है, इन्होंने फौरन कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी कंटेनर 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 जितना कंटेनर है आप वहां से उठाएं। लेकिन अब हमारी कस्टम डिपार्टमेंट और हमारा जो IPR है हमारे से बड़ा ताउन कर रहा है। यहाँ पे जो हमारी स्टाफ है तोरखम पे हैं, हमारे जो नए आप कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हक सरहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कमा खबरा चे वली शिनवारी से बोकड़ा हमा खबरा ज़ियाउल हक सरहदी साहब मुकड़ा ची मूंगता तकरीबन चिकम आगा वक्त के हालात दागे ना हालात देर ज़्यादा खुदी चिकम हम तजारत हुई कार हुई तजारत कई ताजिर हुई सफारतकार हुई अगर मकसद सिर्फ यो दे चीज़ कम से पैसे लगो मत अदाय फ़ायदा मिलौशी और तेर हुकूमत के बाद 50,000 नवाला तर 1 लाख पूरे बाद खाली कंटेनर भत्ता वसूल के दा पैसे बेते अगस्ते कलंग बेते अगस्त चिदा खाली कंटेनर स्ता मुल्क तपरेदम मालदा पैसे राका खाली कंटेनर में राका दा मसला बवा
और 5000 पूरे कंटेनर बा अल तक या खोड़ के वलाड़े वे नबे पर खोदे चा कंटेनर मंदर आता ऐसे को दिनों कोले नुपागे बांधे बा रोजाना $10 नवाला तर $160 पूरे बा जुर्माना केदा दगा ताजरान बबिया उमदगा अफसोस को चे वली मुंग अफगानिस्तान तखपल सामान लेगू चे बिया वापस कई यमना उमदगा वजवा चेकम दगा 15 औशपग अरब डॉलर जमुंगा सालाना ट्रेड हो अफगानिस्तान सरा अगर दे वक्त के सलवे खो 50 करोड़ डॉलर ता रागे मतलब लस चंदा कम शो दोबारा से वाकुल यो गट चैलेंज बवी यो बड़ा शान दमाग लो तास्ता प्रोग्राम की योजल बिहार के लिए वायु और लग उनते के बाद यो सॉफ्ट टॉपिक बांधे हम खबर हो खैर सॉफ्ट टॉपिक होने दे बोले चे दंग प्रोग्राम के खुडेर कम टॉपिक राजी हो टॉपिक इंतहाई हार्ड दे औगदा दे जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द T20 वर्ल्ड कप द न्यूजीलैंड खिलाफ 15 T20 और ब्या इंग्लैंड खिलाफ 2 T20 कम बच्चे पाकिस्तान की मतलब वो T20 द वर्ल्ड कप ना अवल और ब्या द वर्ल्ड कप द पारा स्क्वाड ऐलान करे दे और पदगा स्क्वाड बांधे ढेर ज्यादा एतराजात मखिता रागली दी खुदा स्क्वाड ऐलानात सरा मुंगाओ कतल चे कम द टीम हेड कोच थे मिसबाउल हक अगवी हम इस्तीफ़ा वर्कड़ा और द बॉलिंग कोच वकार यूनस साहब हम इस्तीफ़ा वर्कड़ा वजह सवा आखिर वाले खबर दे हद तराला ते वक्त की मुंग सरा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जावेद हुसैन साहब टेलीफोन मौजूद थे। आप जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और अचानक से सब कुछ बदल गया। एक हदफ होता है हर टीम का कि हम इस वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक इस टीम मैनेजमेंट को रखेंगे, ये हमारा कप्तान होगा, ये हमारे पॉसिबल 20 या 22 खिलाड़ी होंगे। हमारे यहाँ तो एक नया रिवाज चल पड़ा है, 2003 का वर्ल्ड कप हो, 7 का वर्ल्ड कप हो, 11 का वर्ल्ड कप हो, 15, 19 या अभी ये T20 वर्ल्ड कप हो, टीम ही फाइनल नहीं होती, हफ्ता पहले अचानक से नई टीम आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मिसबाह और वकार यूनस को दिया गया था ये जिम्मेदारी तो 3 साल के लिए दी गई थी और 3 साल होने में अभी भी 1 साल बाकी है। और जिस तरह से पिछले 2 साल के दौरान जिस तरह से तजर्बात किए गए तो उसके बाद एक बेहतरीन टीम निकल के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि एक बार फिर से टीम को हाईजैक कर दिया गया। जाती पसंद नापसंद और जो जाती रिलेशनशिप्स हैं खिलाड़ियों के पुराने अपने दोस्तों के साथ, उसकी बुनियाद पर टीम सिलेक्शन कर दी गई। आजम खान जैसे प्लेयर जिसकी जगह ही नहीं बनती टीम में, इनफैक्ट इस वक्त किसी फ्रेंचाइज टीम में भी जगह नहीं बनती, वो आपको वर्ल्ड T20 का प्लेयर बन जाएगा खामा में। लेकिन सीधी सी बात यह है, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रहा हूँ तो मैं इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता चला आया हूँ। आमतौर पे जब प्लेयर्स उनके जब बच्चे वगैरह क्रिकेट खेलने में आते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं या नेशनल टीम की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह से नेशनल टीम का ठप्पा लगवा लिया जाए उन पे, ताकि उनको इंटरनेशनल लीग्स में एक अच्छी प्राइस मिल जाए, उनको अच्छी अदायगी हो सके। जी, तो आजम खान मेरे ख्याल से कुछ इसी किस्म की ही एक पॉलिसी का हिस्सा बने और सिर्फ उन पर WT20 खेलने का पाकिस्तान के लिए एक ठप्पा लग जाएगा तो उसके बाद उनकी प्राइस टैग जो है वो पूरी दुनिया में काफी इंप्रूव हो जाएगी, तो उनका करियर बन जाएगा कम अज कम फ्रेंचाइज लीग के ऊपर बैठ। बाकी जहां तक बात है हारिस रऊफ की, आसिफ अली की, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन, शादाब खान, इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे टीम में जगह बना सकता हो। उस्मान कादिर हो गया, फखर जमान हो गया, फहीम अशरफ हो गया, शर्जील खान, वहाब रियाज, शुएब मलिक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, शाहनवाज दहानी, आमिर यामीन, हुसैन तल्लत, टीम इतनी ज्यादा है कि मैं आपको कहूं कि अगर इस टीम के मुकाबले एक और टीम आप खड़ी कर सकते हैं तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जवाद साहब एक एतराज जो पाकिस्तानी टीम पे बार बार हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये वो शायद वाहिद टीम है T20 की जिसका मिडिल ऑर्डर नहीं है, यानी शुरू से लेके नंबर 6 तक सिर्फ ओपनर ही खेल रहे हैं। जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस टीम का सर मौजूद है, इस टीम का पैर मौजूद है, इस टीम का पेट नहीं है। तो जब आप खेलेंगे तो आपको बाबर आजम और रिजवान दोनों पे इतना एक्स्ट्रा प्रेशर आपने डाल दिया हुआ है कि स्कोर करना है तो आपने करना है। यानी कि अगर आपको इस वक्त प्लानिंग करनी है टीम की, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहले 10 से 15 ओवर्स आपको इन ओपनर्स को खिलाने हैं, वरना आप गए। पीछे एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी लेके खेल सके। मोहम्मद हफीज ने भी हाल ही में जो बयान दिया उसके बाद तो आप उन पर रिलाई ही नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि आपके ओपनर्स जब 40 गेंदों पे 50 रन करके आ रहे होंगे तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फिर 40 गेंदों पे 80 करके आऊंगा। तो जब प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स इस तरह से बात कर रहे हो तो फिर ये चीज तो जाहिर है आपको एक
अच्छा एक जवाद साहब, हमारे पास 7 मैचेस हैं, टोटल 7 T20 हैं। 3 वनडे तो एक साइड पे कर लेंगे पिंडी वाले, 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, 2 इंग्लैंड के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि ये इनफ है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो अब्दुल रज़ाक साहब को और मुश्ताक अहमद साहब को अबूरी तौर पे जिम्मेदारी दी गई है, इसके बाद नए कोचेज आएंगे, तो क्या हम फिर वर्ल्ड कप को में उनको जवाबदेह बना सकते हैं कि हमने आपको ये टीम दी है, आप तो पहले या दूसरे राउंड में बाहर हो गए? जनाब, जब 2 साल की जो पूरी एक एफर्ट थी वो इनफ नहीं थी, तो ये 5 और 7 T20 कैसे इनफ हो सकते हैं? आप कैसे एक टीम का एक शक्ल निकाल के सामने लेकर आएंगे? हो ही नहीं सकता। जब आप 2 साल तक खिला के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, सरफराज को मुसलसल लेके फिर रहे हैं, तो कैप्टन मटेरियल आदमी है उसको उठा करके आपने बाहर फेंक दिया है। जो आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ थोड़ा बहुत इंपेटस दे सकता था उसको आपने उठा के बाहर बिठा दिया। अब चीजें देखें ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इस तक जो माइंडसेट जो समझ में आ रहा है, जो रमीज राजा साहब का है, जो मैं तो नहीं समझता मोहम्मद वसीम की टीम है, ये तो रमीज राजा की टीम है। तो इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि एक दफा आपकी ओपन आउट हो जाए तो उसके बाद हर बंदा आए और लाठे मारता चला जाए, हर बॉल पे छक्का लगाए, हर बॉल पे चौका लगाए, और पाकिस्तान हर मैच में 250-300 रन बना रहा हो। पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं किस माइंडसेट के साथ क्या टीम सिलेक्शन की है। मतलब इनमें से एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है। मिडिल ऑर्डर में आप देखें, सोहेब मकसूद से आप गिनना शुरू करें, हफीज को चले निकाल लें, आप सोहेब मकसूद को देख लें, आप उसके बाद आसिफ अली को देखें, खुशदिल शाह को देखें। जवाद साहब, आखिरी सवाल, वर्ल्ड कप में तो अभी टाइम है, लेकिन जो आखिरी T20 हुआ है न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का, और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को 76 पे ऑल आउट किया है, आपको लगता है कि हमें एक उम्मीद थी कि विलियमसन नहीं है, गप्टिल नहीं है, बड़े खिलाड़ी नहीं है, इन खिलाड़ियों को तो हम लोग जो है वो 15 ओवर में ही बाहर कर देंगे? लगता है आपको कि हम लोग ये 5 T20 की सीरीज इस टीम के साथ जीत जाएंगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जीत जाएंगे, क्योंकि आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, कंडीशंस आपको फेवर करेंगी। तो न्यूजीलैंड चूंकि मेन प्लेयर्स के बगैर आ रहा है, तो इसलिए ये सीरीज तो इतनी ज्यादा आपको टेस्ट नहीं करेगी। इंग्लैंड वाली सीरीज फिर भी आपको टेस्ट करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी ज्यादा टेस्टिंग सीरीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसे करो को शीदा टूल टीम पर 2 कालों के सिर्फ दा अशनायानो पा काता के रवानो यो कस बाखपल मर गए, बल बाखपल मर गए रावस्त उमदा के मरगरतिया के दरण दा अरसूशु और नन पदा के प्लेटफॉर्म के मुंगा हम लग द स्पोर्ट्स खबर औकड़ा चाखिर दा टीम चर तरवान दे टोल पाकिस्तान पदा यो स्पोर्ट्स के क्रिकेट ता मुंगा टोल उस्तरगी वी बाकी स्पोर्ट्स हो तपोस नशु कोले च द हाके सहल दे, द स्क्वाश सहल दे, या टेनिस के हो मुंग चताड़ो वलाड़ नहीं दगा स्पोर्ट्स होला साइड तक है खुद दगा यो वाहिद स्पोर्ट्स के मुंगा यूं नए के दन्ना हम ताल्लुकात थी और सिंह इमरान खान से विलियो के कला पूरे वज़ीर आज़म द खपल खे चेयरमैन रावली आए पर दा टीम नशी खके दे नो बिल्कुल टिक विलियो अगवी खपल दरे कालो के हम दगा कारो को और उसेम रमीत राजा पखपला खवा खरावस्त नो अगवी हम पखपल दौर के उमगा ओकड़ कम च मख के शिवी दी चे दुई आगार सके कम च मख के शिवी दी नो रिजल्ट बहोम ब्या उमगा से मखे तराजी ये बड़ा शंद मख प्रोग्राम की ओजल बिहार करे वायु और उमा मरदम शुमारी काल 2019 के शेवा और पागे बांधे तकरीबन टोले सूबे खपावे पंजाब खो पे खास खफगान नो जाहिर करे खो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ढेर ज़्यादा खफगान जाहिर करे आगा वखम और उस हम जमुंगा चिकमा यो मुतालबा वा चे दगा मरदम शुमारे के जमुंगा ढेर ज़्यादा पुख्ताना रूना ख्वेंदे कम चे दे वक्त के दा मुल्क ना बाहर दी जमुंगा रूना ज़्यादा तरा आगा पा गल्फ की दी दागवीश मेरा न दा शामिल करे शवे आगा हम शामिल जमुंगा मुतालबा वा दा सिंध हुकूमत कराची हवाले सर यो गिलवा चे दू चकमा खारिया खोले दा कराची खार न दे कराची कम अज़ कम आबादी 2.5 करोड़ दा अगवी से तकरीबन सकम 2 करोड़ खोलेवा और एक ब्या कलीला के हम शामिल करे हो लाहौर डेर घट खोद ले हो नु पागे माने काफ़ी एतराज़ हो उस यो सिफारिश मखे तरागले दे और यो कमेटी कम अचे दा मुश्तरका मफादात कौंसल पे इजलास के जोड़ शे हुआ दा इदारा शुमारियात अगवी खपल सिफारिश वर्क चे अतम मरदम शुमारा ना अवल तासो पूरा मुल्क के यो वर्कआउट होते तजर्बाती बुनियाद बांधे मरदम शुमारियों के द 15% मुल्क तासो वाए के आइडेंटिफाई के द बैलेट पर जरिया अचानक बेवज़िया मख तराशी और तासुबा अलतके मरदम शुमारियों के दे के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दा दरख्वास्त करे दे चे कबायली सीमा पदे के शामिल के पूरा मुल्क की दाविदा वैनादा चे डिजिटल मरदम शुमारी मतलब टैबलेट बा पूरा टीम सरवी अचर तजी उमल तब एंट्री कई डेटा
रॉडल बनी अमल तना एंट्री कीगी और अगबा मेन डेटाबेस के ब्या सेव कीगी दा ई वैनादा और बागे मन ब्या खबर मखे तजी 99% मुल्क की दागुदा वैनावा चमुंगता इंटरनेट अवेलेबल दे इस किस्म मसला बनी सिर्फ यो % मुल्क बवी चलतबा तासो ब्या खतो किताबत पर जरिया कागज पर जरिया मरदमशुमारी का दा सिफारिशात मखेता रागली दे सरा अगुदा वैना ओकड़ा च मरदमशुमारी पारा तासो पूरे सेंटर जोड़ के चिकम दा वफाक पर लेवल वी टोल सूबे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर बा आगे के शामिल हुई और ब्या आगे ना पस हर सूबा के दना बियलियो सेंटर जोड़ के अब आगे सारा कनेक्टेड हुई तो सूबे पर लेवल में चिकम तासो सेंटर जोड़ा हुए आगा बाब्या खपल तहसील लेवल बांधे यो सेंटर सारा कनेक्टेड हुई चिकला मरदमशुमारी की गई 24 घंटे बा आगा दा फाल हुई दा तजवीज़ हम रागे चिदा पा पोर्शन के मकावे सिंगा 13 जल्ला पर 2 पोर्शन के शेव 20 अरब रुपए पे लगे दिले हुए दे जल्ला टोल यो गो के ओके यो जे ओके और खाना शुमारी और मरदमशुमारी द्वाणा ओके यो सिफारिश दा हम दे चेचा आईडी कार्ड मगवाड़े का आईडी कार्ड निश्ता ब्या हम दा एकस रजिस्ट्रेशन ओके इंटरव्यू के दाखलता मौजूद दे 13 जल्ला दा जरूरी हुआ छदागा फार्म बे या शनाख्ती कार्ड भी अले बदागा एंट्री की किन्नी की रिशी बार न रागली हुई देख के दना दा खबर मखे तरागली दी और चिकम कसान तक हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दा सिफारिश हम दे चिकम बार मुल्क के जमगा खलक थी अगम पदे के शामिल के चिकला अगीराजी नोमदगा सूबा की हुई खैबर पख्तूनख्वा आबादी दे वक्त के वली कबायली से मसरा 3 करोड़ 55 लाख था 50 लाख टोल कबाइल अगवी खोलो और अंदाजे मुताबिक 1 करोड़ न बरा खवाई के बेकोरा शिव्यू न लग दा एतराज़ मखे तरागले तमलरू चिकमा अतमा मरदमशुमारी की आगे के बाद दगा एतराज़ात नवी और वक्त ख़त्म दे इजाज़त रा के अदा अल्लाह पामान।